Hello dear students of class 12th B, C and D. Here we are starting with a new chapter, fourth chapter from the second book, that is economic development, poverty. So in simple language, if you want to define poverty, how you will define a state where an individual is unable to fulfill even the basic necessities of life. रोटी कपड़ा और मकान जिसको हम ट्रेडिशनल वे में कहते हैं सर, आजकल तो खैर दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हो गई हैं, दैट इज एजुकेशन एंड हेल्थ facilities. Okay, but हम ये अभी मान के चल रहे हैं कि these are the three very important basic things for survival. Okay, food, shelter and clothing, and if a person is not able to get this, then you consider him as a poor. These are the minimum requirements. Okay, the minimum requirement, that is food, shelter, clothing. और यहाँ पर दो चीज़ और ऐड कर दी गई आज के ज़माने में इन दिस करंट सिनेरियो, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज. हाउसिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ कोर्स हेल्थ फैसिलिटीज आर वेरी वेरी important. And naturally at present in the current scenario we are going through that sort of pandemic, so this health facilities are also added. Okay, now the question is, who are considered as poor? Now this answer, as you can say, you cannot give the answer in black and white. Okay, बिल्कुल yes or no में हाँ ये लोग गरीब हैं ये लोग अमीर हैं, no, isn't it? Because there are shades of grey also. Okay, in India that is a big problem. किसको आप बिल्कुल कंपार्टमेंटलाइज कर रहे हो एज पुअर एंड हु आर रिच? दिस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीच टू दिस पर्टिकुलर आंसर, बट हम लोग कोशिश करेंगे. स्टारवेशन, तो हु आर पुअर? सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर ऑफ पुअर पीपल. स्टारवेशन एंड हंगर आर द की फीचर्स ऑफ पुअर पीपल. स्टारवेशन एंड हंगर, ये उनकी खास बात होती है, isn't it? Poor people, they are, you will find them either starving or hunger will shown will be shining through their eyes. Okay, starvation का मतलब भूख से बिलबिलाना, isn't भूख भूखे मरना जिसको कहते हैं. So many times it happens that the people that die in India, this is happening. India is a developing nation. It's not a third world nation, but still people are dying because of hunger in certain areas or certain states which are considered as very very poor. ठीक है, तो starvation and hunger, these are the main characteristics of poor people. और दूसरी क्या है? They lack basic skills and literacy, isn't it? Naturally one particular thing is generating other, that is the problem. एक और चीज़ होती है, इनके पास basic skills नहीं होती है, because of which neither they are semi skilled nor they are completely skilled. They are without any skill, devoid of any skill, and no literacy level is there, isn't it? And that is the reason why they have very limited employment opportunities. इसका मतलब ये नहीं कि जो पढ़े लिखे हैं उनको employment मिल रहा है, उनको भी नहीं मिल रहा है, isn't it? तो ये बस बात बताई जा रही है, isn't it? If you find a beggar like person, if you find a vagabond जिसको हमने इंग्लिश में पढ़ा था, vagabond means that particular person who is a wanderer who move from one place to another without any, उसको आप देखोगे सब जो कहाँ तक पढ़े हो, तो भाई बोलेगा कि मैंने तो पढ़ाई स्कूल नहीं गया, isn't it? And literacy level will not be there, और so naturally they will not have any employment opportunities. Okay, तो और characteristics क्या हैं? लोग hunger and starvation के बारे में मैंने बता दिया. Poor health, हाई रेट ऑफ मोर्टालिटी. अरे ऐसे बंदे जो हैं उनकी हेल्थ, ऐसा नहीं होगा आपको कि बहुत मोटे तगड़े मिलेंगे, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मेक बोथ हैंड्स मीट. तो वो दे विल यू विल ऑलवेज फाइंड देम वेरी थिन एंड लीन, डजंट इट? व्हाट वी से, their skin, their bones peeping through their skins, isn't it? Lean body, lean structure. So very poor health they will be having, and they have high rate of mortality, isn't it? उनकी जो डेथ की रेट होगी वो भी poor people की ज़्यादा होगी. डेथ रेट ऑफ mortality, कोई छोटी सी भी बीमारी हुई, because of the lack of medical facilities they might die, isn't it? So the rate of mortality is very very high in poor people, isn't it? And you will find them always in debt trap. मतलब एक तरह से वो किस चीज़ की में फंसे रहेंगे? कर्जे में, isn't it? They will take from the money lender, they will take the कर्जा, or they will take the debt, and they would be debt ridden, and they will not be in a position to return back the high interest rate. और interest rate कैसा भी, वो भी simple interest नहीं, compound interest. ठीक है? And then naturally अगर हर चीज़ होती है कि अगर आप, if you are very very poor, then you will not be aware of your political rights, you will not be aware of your other types of rights. So naturally you will have what? Weak bargaining power, isn't it? Unable to negotiate their legal wages. कई गांव ऐसे यूपी में आप चले जाइए, isn't it? There are people who are working in the fields, and there are norms, isn't it? Government has fixed daily wages for the poor people, isn't it? For the landless laborer, कि इतने में आपको 300 रुपये या 350 रुपये आपको रोज
मिलेंगे, but naturally because they are having they are what we say powerless in a way, or they are having, they're illiterate, they have weak bargaining power, so whatever the employer will give them they will accept it, है ना। वो आप उनको 80 रुपये दे देगा 350 की जगह और कहेगा कि हाँ साइन कर दो, अंगूठा लगा दो, लगा देंगे बेचारे, और 80 रुपये में उनका पूरा होगा नहीं। So they have weak bargaining power. They are not aware of their rights which are mentioned in the constitution. They are not aware of the political rights also, isn't it? और ऐसे लोग एक झुंड में रहते हैं, they are, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं गेटोज, है ना, गेटोज, जिसको गेटोज, दे आर थ्रोन इनटू गेटोज, और गेटोइजेशन, GHETT, गेटोज का मतलब एक आपको कहीं पर एक उनका एक एरिया फिक्स हो जाएगा, सारे गरीब वहाँ चले जाएंगे, जैसे झुग्गी झोपड़ी का एरिया, या आप अगर मुंबई में जाएंगे तो धारावी, वो दैट पर्टिकुलर एरिया, अब तो बहुत बड़ी हो गई वो कॉलोनी, ऐसा। तो दे विल बी थ्रोन इनटू गीटोज वेयर देयर विल बी लैक ऑफ सिविक एमिनिटीज, पानी नहीं, शुद्ध पानी नहीं, पोर्टेबल वाटर विल नॉट बी देयर, isn't it? And this particular area would become a breeding ground for all types of epidemics, outbreaks of disease, सब वो ज़्यादा, no sanitation, proper sanitation, isn't it? So पूरा का पूरा lack of civic amenities रहेगा। तो ये सब खासियत थी किसकी? ये अमीर लोगों की खासियत नहीं, गरीबों की, ठीक है। And you will always find gender inequality also because they are illiterate, okay? So gender inequality भी इनमें बहुत ज़्यादा रहेगी, ऐसा ना। वुमेन एम्पावरमेंट इनको कहीं नहीं होगा, घर का मर्द ही का काम करने बाहर जाएगा, लेडीज़ जो शायद काम कर सकती है उनको बाहर नहीं भेजा जाएगा कि भाई आपके जाने का नहीं है, लड़के जाएंगे। तो मे बी दिस ऑल थिंग्स आर देयर विच एड टू देयर मिजरेबल कंडीशन, ओके। तो आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कौन गरीब है? आप बहुत इजीली कर सकते हो, उनके कपड़े से, उनसे रहन सहन से, बिकॉज ऑफ देयर मैनरिज्म, isn't it? आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, क्या काम कर रहे हैं वो, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑक्यूपेशन, अगर कोई डेली मजदूरी कर रहा है या बर्तन मांज रही कोई लेडी, या कोई आजकल तो जेंट्स भी बर्तन मांजते कहीं पे शादियों में, isn't it? और इफ दे आर सेलिंग समथिंग, गॉट इट, तो यू विल रियलाइज दैट दे आर नॉट वेल ऑफ। ठेला लगाया कि छोटी सी बास्केट लेके कोई बैठ गया, कुछ थोड़ा सा फ्रूट बेच रहा है, isn't it? आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा सर। तो यू कैन आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है, क्या काम कर रहे हो सब आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। माइग्रेशन टू अर्बन एरिया, एक और खासियत होती है माइग्रेशन टू अर्बन एरिया, because in rural areas job opportunities are very rare, so what they are doing, they are moving from their villages from UP, Bihar, moving to metropolitan cities like Mumbai, isn't it? And there वहाँ पे जॉब मिल रहा है उनको, अच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ पर वो खोमचे लगा रखे हैं उन्होंने, ठेले लगा रखे हैं, गॉट इट, और सारी चीज़ें वहाँ पर बेचते हैं, isn't it? और वहाँ पर भी उनको एक तरह से दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है, isn't it? They are considered as second class citizen by the native people। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। आप देख लोगे कि भाई वो मुंबई में आप जाओगे तो कोई चाय बेचने वाले हैं, रेहड़ी लगाने वाले हैं, ठेले लगाने वाले, सब फ्रॉम दे आर माइग्रेंट्स, माइग्रेंट लेबर। अभी जो आपने देखा था बिकॉज ऑफ द कोरोना क्राइसिस ड्यूरिंग दिस पैंडमिक, हाउ द पीपल suffered, isn't it? Because when they came to know about the lockdown, they covered migrant laborers, isn't it, from Delhi, Mumbai, isn't it? They reached to their native places by covering 1,800, मतलब 800 से 1,000 किलोमीटर they travel through their foot, because कुछ बसेस वगैरह कुछ नहीं थी, so उनकी कंडीशन सबसे ज़्यादा खराब रही, ठीक है ना। माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज, ठीक है ना। ये यहाँ पे सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई मैंने गरीबों की, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना, वीडियो घड़ी घड़ी देखोगे आप समझ में आ जाएगा, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ना समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो चीज़ होती हैं जिसको हमने पॉवर्टी को विभाजित किया है, वी डिवाइडेड पॉवर्टी इनटू व्हाट वी से टू ग्रुप्स, वन इज रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। देखो रिलेटिव का मतलब आपने सुना होगा, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ऑल्सो कॉल्ड propounded the theory of relativity, in Hindi it is called, कहते हैं सापेक्षता, isn't it? So अगर हम कहें रिलेटिव मतलब आप किसी चीज़ से कंपेयर कर रहे हो, तो रिलेटिविटी और रिलेटिव पॉवर्टी मीन्स कंपेयरिंग एन इंडिविजुअल्स पॉवर्टी और नेशंस पॉवर्टी विथ अनदर। तो रिलेटिव में हमेशा कंपैरिजन आएगा, ओके, गॉट इट। फॉर एग्जांपल इसकी डेफिनेशन भी बहुत है, isn't it? Poverty of people in relation to other group, क्लास, रीजन और स्टेट और कंट्री, ठीक है ना। कंपेयर कर रहे हो, आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो अंबानी से, मान लीजिए, तो आप क्या कर रहे हो,
दिस वुड बी कॉल्ड एज रिलेटिव पावर्टी। आपने अपने आप को अंबानी से कंपेयर किया कि मेरी हैसियत ज़्यादा है कि अंबानी की हैसियत ज़्यादा है, तो दिस इज रिलेटिव पावर्टी बिकॉज यू आर कंपेयरिंग। ठीक है, similarly you are comparing, suppose if the people of India, isn't it, the per capita income of the people, or you're comparing the who are the poor people of India with the poor people of America, वहाँ पे भी शायद कुछ गरीब हैं, उनसे कंपेयर करोगे तो देन दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव पावर्टी। ठीक है ना, आप यहाँ के एक बैंक एम्प्लॉय है, उसकी जो इनकम है उसको कंपेयर कर रहे हो आप क्लर्क के, अमेरिका के एक बैंक एम्प्लॉय है, क्लर्क से, तो व्हाट विल हैपन, दिस इज रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिविटी, आप रिलेटिव कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, सो पॉवर्टी ऑफ पीपल इन रिलेशन टू अदर पीपल, रीजन्स और नेशन, ये गॉट इट। एक रीजन या एक स्टेट, यहाँ यानी कि जो एक किसान है कहाँ का, पंजाब का, वो उसकी जो है आप वेल्थ कंपेयर कर रहे हो, एक किसान है कहाँ का, बिहार का, उससे कंपेयर कर रहे हो और पॉवर्टी को कंपेयर कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, रिलेटिव पॉवर्टी के थ्रू करोगे। ठीक है, देयर इज ऑलवेज कंपैरिजन व्हेन इट कम्स टू poverty of people. ठीक है, now through relative poverty the inequality of income and asset ownership is measured, है ना, through relative poverty the inequality of income and asset ownership is measured. It helps to understand the relative position of different group. अगर इंडिया की ही बात करें, भाई किसके पास कितना एसेट है, किस, isn't it, एसेट ओनरशिप, जायदाद जिसको कहते हैं, isn't it, और कितनी इनकम है। ठीक है ना, इसको अगर आप कंपेयर करोगे किसी दूसरे स्टेट से, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट हाउ मच, व्हाट सॉर्ट ऑफ इनइक्वालिटी इज देयर बिटवीन अ फार्मर इन यूपी एंड अ फार्मर इन पंजाब, या फार्मर इन यूपी एंड अ फार्मर इन बिहार, अ फार्मर इन यूपी और अ फार्मर इन राजस्थान। ठीक है ना, तो ये इससे आपको पता चलेगा कौन कहाँ पर किस पोजीशन पे खड़ा है इंडिया, तो ये कहलाएगी रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है ना, जैसे कि एग्जाम्पल इन इंडिया 20% ऑफ द पुअरेस्ट पीपल शेयर शेयर इन नेशनल इनकम इज 8.5%। अब इससे मालूम पड़ जाएगा, जैसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, कि जो पीपल हु आर एट द लोवेस्ट लैडर ऑफ इनकम, उनको गरीब कहेंगे। ठीक है ना, अगर आपने हायरार्की बनाई जैसे मान लीजिए, और सबसे नीचे लेवल पे कौन है, गरीब है, 20%, 20% को ले लो और उनका शेयर देखो नेशनल इनकम में, तो यू विल फाइंड दैट देयर शेयर इज जस्ट 8.5, और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तो कहती है कि इससे भी कम है, 8.5% से भी कम। और जो टॉप क्रीम है सोसाइटी की, जिनको फ्रेंच में क्रैम डे ला क्रैम कहते हैं, समझे, इंग्लिश का वो फ्रेज है, टॉप ऑफ द टॉप, जैसे मलाई, जो दूध की जो मलाई जमती है ना ऊपर, वो उन 20% को ले लो आप, तो उनका शेयर जो आएगा किसमें, नेशनल इनकम में 46.2, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, सरकारी आंकड़े ऑलवेज मिसलीडिंग, तो 46.2% से शायद ज़्यादा हो, कितना 50% भी हो, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ये कंपेयर करा आपने टॉप 20 को और लोवेस्ट 20 को, तो ये रिलेटिव पॉवर्टी के थ्रू हुआ, इससे हमको पता लग गया कितनी इनइक्वालिटी इज प्रिवेलिंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है ना, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इंडिया के अंदर यही मानी जाती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है ना, अब यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा, अब यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, पैमाना क्या है, कि वेदर यू आर एबल टू फुलफिल यू आर एबल टू गेट बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ कंफर्टेबली और नॉट। वो बेसिक नेसेसिटीज क्या है, खाना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये आपका पेट, ये आपको फुलफिल हो रहा है कि नहीं, अगर फुलफिल हो रहा है तो आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी में नहीं आते, उसके ऊपर हैं, मतलब पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। ठीक है, got it? So yeah, if you are able to fulfill if you are able to go above the cutoff level of subsistence living, then you are above poverty line. कौन सी poverty line? Sorry, you are above absolute poverty. उसके ऊपर आ गया, ठीक है ना? So absolute poverty, simple definition, isn't it? Situation where a person is unable to fulfill the minimum consumption level, where a person is unable to meet this minimum consumption level. एक अभी हम आगे पढ़ेंगे, कंजम्पशन लेवल फिक्स कर दिया है। ठीक है ना, एक कंजम्पशन लेवल ये क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है कि भाई इतना आप खाना पेट में पहुंच रहा है कि नहीं 3 टाइम का, तो अगर वो आप कर रहे हो कंजम्पशन लेवल फुलफिल, उसके लिए इतना खाना जो अगर पेट में जा रहा है, इफ यू आर एबल टू स्टफ योर बेली विद दिस फूड, isn't it? मतलब क्या है कि वो जो
फूड जितने रुपए का आता है वो रुपया आप खर्च कर पा रहे हो कि नहीं, फूड तो फ्री में मिलेगा नहीं, तो एक क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स कर दिया, इतना फूड आपके पेट में जा रहा है उस पर आप खर्च कर पा रहे हो, खर्च कर पा रहे हो तो मतलब आप अमीर हो, और नहीं तो गरीब हो। इसको समझिए अच्छी तरह, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। ये स्टार्ट कैसे हुआ? 1947 में हम लोग जो थे, वी गॉट आवर फ्रीडम, इजंट इट? तो ठीक है ना, हम लोगों की फ्रीडम कब? 1947 में मिले, लेकिन 1947 से करीब 12-13 साल तक कुछ भी नहीं हुआ पावर्टी के लिए, कोई ठोस कदम हमने नहीं उठाया, बस ये बोलते रहे, मतलब एक कंक्रीट डेफिनेशन नहीं दे पाए थे। 1962 में क्या हुआ कि प्लानिंग कमीशन जो था, प्लानिंग कमीशन का एक घटक था, वन पर्टिकुलर यूनिट ऑफ प्लानिंग कमिटी, है ना, उसने क्या करा, उसने फिक्स 1962 में कुछ डेफिनेशन देने की कोशिश करी, किसको? पावर्टी को। उन्होंने कहा, उन्होंने पैमाना लिया, दे टुक दिस पर्टिकुलर पैरामीटर ऑफ बैलेंस्ड डाइट, कि क्या जितने लोग बैलेंस्ड डाइट खा पा रहे हैं, आर दे एबल टू स्पेंड मनी ऑन बैलेंस्ड डाइट। मतलब 1962 की बात है, ठीक है। और उन्होंने फिक्स कर दिया कि 30 रुपये में बैलेंस्ड डाइट आ जाती है, मान लीजिए कितने? 30 रुपये में। अगर आप देखोगे 30 रुपये में अर्बन एरियाज़ में आ जाएगी बैलेंस डाइट। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ लिखा नहीं है, अर्बन एरिया में 30 रुपये में आपको बैलेंस डाइट मिल जाएगी, ठीक है। और रूरल एरिया में आपको मिल जाएगी ये 20 रुपये में, सस्ता है। रूरल में कितने? मान लीजिए 20 रुपये में मिल रही है ना। तो ये 30 और 20 रुपये हर महीने आप खर्च कर पा रहे हो तो आप अमीर हो, नहीं कर पा रहे हो उतना तो आप गरीब हो, बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है, ठीक है ना। और उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ ना वेरी व्हाट वी से, थोड़ा सा वेग मैनर में, जो ठीक नहीं था, वो डिवाइड कर दिया है उसको, ठीक है ना। मतलब बहुत ही कॉन्क्रीट डेफिनेशन नहीं थी, बैलेंस डाइट ले रहा है नहीं ले रहा, ठीक है ना। दिस वाज इन द ईयर 1962, बट फिर अगेन इन द ईयर 1969 थोड़ा इसमें इम्प्रोवाइज किया गया इस पावर्टी को फिक्स करने में। ऐसा 1969 में उन्होंने कहा नहीं, बैलेंस डाइट को छोड़ो, देयर शुड बी अनदर लेवल, एंड इट इज़ कॉल्ड फिक्सिंग पावर्टी लाइन थ्रू कैलोरीज। बिकॉज खास इंपॉर्टेंट चीज़, आप कितनी कैलोरीज ले रहे हो, ठीक है ना। तो कैलोरीज से फिक्स की गई, किसको? पावर्टी को डिफाइन किया गया, कैलोरीज, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आप शहर में रह रहे हो तो इट शुड बी 2100 कैलोरीज ऑन अ डेली बेसिस, इतनी कैलोरीज आपके पेट में जाना चाहिए, अदरवाइज यू विल सफर फ्रॉम अंडर नोरिशमेंट और यू विल बी माल नोरिश्ड। और अगर आप यू आर स्टेइंग इन द अर्बन रूरल एरिया, इट शुड बी 24, ठीक है, कितना होना चाहिए? 2400 कैलोरीज डेली का इनटेक। जो भी आप खाना खाते हो उसमें 3 या 5 चपाती आ गए, 2 कटोरी दाल आ गई, कुछ अगर नॉन वेजिटेरियन तो अंडा आ गया, दूध 1 ग्लास आ गया, सब में कैलोरीज होती हैं, ठीक है ना। तो रूरल में 2400 फिक्स करी, अर्बन में मैंने बताया कितना? 2100। अब तो आप पूछोगे कि अर्बन में ज़्यादा क्यों? कि वहाँ पे मेहनत का काम ज़्यादा होता है, इसलिए 2400। और 2100 शहर में मेहनत काम ज़्यादा होता है, बैठक का काम ज़्यादा होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ 2100। बट यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि अगर उसने जो कमिटी बैठी थी 1969 में, उन्होंने कहा कि इफ़ यू आर एबल टू गेट, इफ़ यू आर एबल टू स्पेंड, इफ़ योर एक्सपेंडिचर और इफ़ यू आर हैविंग द मनी एंड इफ़ यू आर एबल टू एक्सपेंड on food through which you are able to buy food with 2400 calories and 2100 calories, then you will be considered as rich, you are not in the poverty line. अगर आप पैसे इतना, अगर आप पैसे इतना खर्च नहीं कर पा रहे हो, एक मिनट, क्या हुआ कि अगर इतना, इफ़ यू आर एबल टू ईट, इफ़ यू आर एबल टू कंज्यूम दिस मच कैलोरीज, दैट मीन्स इफ यू आर एबल, मतलब कंज्यूम क्यों कर पा रहे हो? बिकॉज यू आर इन अ पोजिशन टू स्पेंड दिस मच मनी, यू आर एबल, यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन दिस मच फूड, तो दैट मीन्स यू आर वेल ऑफ, ओके। इतना नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर पुअर। सो दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड। So this is how it is defined, okay. So 2400, तो ये 1969 में फिक्स किया गया था। So it is fixed in the year 1969. If a person is able to get a certain amount of calories, doesn't it, by spending a certain sum of money, that means he is well off, ठीक है। तो इसको अभी हम आगे में डिटेल में पढ़ेंगे कितना, ठीक है ना, उसको फिक्स किया गया था किस तरह से, तो आप समझे आप। सो अब देखिए, so absolute poverty
टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पावर्टी, एक इमेजनरी लाइन बना दी गई थी. सो इन पावर्टी लाइन अ स्टैंडर्ड इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ मिनिमम कंजम्पशन लेवल, एक इमेजनरी लाइन खींच दी गई, ठीक है, और एक स्टैंडर्ड रख दिया गया कि भाई इन टर्म्स ऑफ मिनिमम कंजम्पशन लेवल. मिनिमम कंजम्पशन लेवल मतलब इतना कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो आप और उसके लिए इतना पैसा खर्च कर पा रहे हो, फिक्स कर दिया गया, ठीक है. गॉट इट. एब्सोल्यूट पॉवर्टी रिफर्स टू सिचुएशन, ये तो मैंने बता दिया. पॉवर्टी लाइन ऑल्सो रिफर्स टू दैट लाइन, ये पूरी की पूरी कंप्लीट डेफिनेशन है किसकी, पॉवर्टी लाइन की. मान लीजिए 2 मार्क्स में आ गई. पॉवर्टी लाइन ऑल्सो रिफर्स टू दैट लाइन विच एक्सप्रेसेस पर कैपिटा एवरेज मंथली पर कैपिटा का मतलब हुआ पर पर्सन, isn't it? Average monthly expenditure incurred by the people to satisfy their basic needs, मतलब per person average monthly expenditure which is through which you are able to buy 2100 calories or 2400 calories depending upon whether you are living in rural areas or urban area, ठीक है. इतना कर पा रहे हो तो you will be categorized as poor or rich, ठीक है. So इन इंडिया पर्सन्स, अब देखो ये, अब बात समझो इसको अच्छे से, ये 2011 और 12 में फिक्स कर दिया गया था, समझो ये थोड़ी हंसी की भी बात है. इन इंडिया पर्सन्स हु स्पेंड ₹816 इन रूरल एरियाज एंड ₹1000 इन अर्बन एरियाज पर मंथ. रोज की बात नहीं हो रही, पर मंथ. अगर रोज वो इतना स्पेंड कर रहा है मतलब 30-40 हज़ार रुपये कमा रहा है. अगर 816 रुपये आप रूरल एरियाज में महीने के फूड पे खर्च कर पा रहे हो, जिससे आपको 2400 कैलोरीज मिल रही हैं, और अर्बन एरियाज में आप जो कितना 1000 रुपये खर्च कर पा रहे हो जिससे आपको 2100 कैलोरीज मिल रही हैं, देन यू आर ट्रीटेड एट अबोव पॉवर्टी लाइन, नहीं तो बिलो पॉवर्टी लाइन. अब यहाँ हास्यास्पद बात है, क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में 1000 रुपये में कौन गुजारा कर रहा है? अभी 11-12 के आंकड़े अभी तक चल रहे हैं. 816 रुपये में किसका गुजारा हो रहा है? मतलब 1000 रुपये की बात हो रही है यहाँ पे, तो मतलब आपका 30 रुपये महीना, 30 रुपये रोज़, 30-40 रुपये रोज़ में आपका खाना मिल जाएगा क्या? आपको नहीं, मुश्किल है. ओके, प्रोवाइडेड अगर आप रूरल एरिया में रहते हो मान लीजिए, तो वहाँ चलिए मान लीजिए आपको कुछ मिल जाएगा 30 रुपये में. बट अगर आप शहर में रह रहे हो तो इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. मान के चलते हैं, चलिए चलो रतलाम जैसी सिटी में भी शायद गुजारा हो जाएगा, कहीं ना कहीं से 30 रुपये में आप कुछ खा लोगे, 2-3 टाइम पोहे खा के गुजारा चल रहा है, बट वो माल न्यूट्रिशनमेंट हो जाएगा. अब अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक बेंगलोर और कलकत्ता और मुंबई में रह रहे हो, तो आपको कौन देगा? आपको एक रोटी नहीं देंगे ढंग से. 30 रुपये में एक कटोरी दाल और एक रोटी भी नहीं आएगी रोज़ की. तो ये बहुत ही ज़्यादा संदेहास्पद है, सस्पिशियस है ये पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना. अब अगर प्रेजेंट के आंकड़े देखें हम, तो इन इंडिया नियरली 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दे आर एब्सोल्युटली पुअर. 20%, ये तो सरकारी आंकड़ा क्या सर, अभी भी 20%, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. मतलब आप सोचिए 20%, 100 में से 20 मार्क्स आप जो पास होने के लिए भी कितने 33 चाहिए, isn't it? तो अब आप सोच लीजिए कि एक इंडिया जैसा कंट्री है, डेवलपिंग नेशन है, जिसकी इकोनॉमी कुछ लोग कहते हैं कि ग्रो कर रही है अच्छी तरह. उसका रिपोर्ट कार्ड अगर इकोनॉमी का देखें तो उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि आपकी क्लास के अगर 60 बच्चे हैं, तो 60 बच्चों में से आप देख ले 20% बच्चे जो हैं वो फेल हैं, ठीक है ना. तो एक बहुत बड़ी बात है. मतलब अगर आपकी पॉपुलेशन 100 करोड़ है, तो 100 करोड़, आज तो एक मान लीजिए 120 करोड़ है, तो मतलब 25 से 30 करोड़ लोग आज भी जो है पावर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं. वो कौन सी पावर्टी लाइन के नीचे? ये वाली जो फिक्स कर रखी, 816 और 1000, ठीक है ना. अब अगर इनमें से आपने वो लोग जोड़ दिए जो महीने के 2000 रुपये कमा रहे हैं, 3000, तो और नीचे चली जाएगी, ठीक है ना. तो ये तो इस बेसिस पे है, तो इसका मतलब हमारी हालत बहुत ख़राब है. और 73-74 के अगर हम अभी आंकड़े देखेंगे, आज से 40-45 साल, तो हमारी 50% आबादी जो थी गरीबी रेखा के नीचे थी. तो हमारी हालत जो थी रियली इट वाज हॉरिबल एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है ना. अब अगर हम कैटेगराइज करें पुअर पीपल को, तो कैसे करोगे आप? कौन कौन से होते हैं? इनमें भी कैटेगरीज होती है. और सरकार ने क्या करा, बस एक पावर्टी लाइन खींच दी, ऊपर अमीर नीचे गरीब. बस अब वो गरीब सारे एक जैसे हो गए, लेकिन गरीब भी अलग अलग तरह के होते हैं, अमीर भी अलग अलग तरह के होते हैं, ना. पावर्टी लाइन के ऊपर आपने कह दिया सब अमीर हैं. अब भाई उन अमीरों में भी तो कैटेगरीज हैं. बिलियनर्स हैं जो 10% है या 20% है. फिर उनके नीचे कौन आएंगे? मिलियनर्स आएंगे. फिर वेरी रिच आएंगे, फिर रिच आएंगे, फिर मिडिल क्लास के लोग आ जाएंगे, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये सारे लोग आते हैं, ठीक है. तो कैटेगरीज अगर हम बात करें, क्रॉनिक पुअर,
क्रॉनिक पुअर का मतलब होता है हु आर ऑलवेज पुअर। जैसे क्रॉनिक डिजीज होती है ना, बंदा अगर क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहा है तो 24 मतलब वो साल भर बीमारी रहता है एक तरह से, ना। क्रॉनिक पॉवर्टी, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस पीपल दे आर पॉवर्टी स्ट्राइकन, एंड समटाइम्स हैव अ लिटिल मनी। एग्जाम्पल कैजुअल वर्कर, बहुत ही कम, कभी थोड़ा बहुत पैसा आ गया, काम कर लिया, नहीं तो साल भर बेचारे पॉवर्टी से घिरे रहते हैं। एक होती ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब चलती फिरती या पॉवर्टी विथ मूवमेंट। अब ये बेचारे क्या है कि एक पॉवर्टी लाइन है ना, उसके अंदर बाहर होते रहते हैं। कभी पॉवर्टी लाइन के थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं, तो थोड़ा पैसा आ जाता है, तो वो क्या अमीरों की श्रेणी में जा चले जाते हैं। मतलब अमीरों की श्रेणी मतलब क्या, वो पॉवर्टी लाइन से हल्के से ऊपर पहुंच जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो ये कौन सा ट्रांजिएंट, एक मैंने लाइन खींची है, देखिए, पता नहीं दिख रही है कि नहीं आपको। जैसे मैंने ये लाइन खींची है ना, ये लाइन खींच दी, ठीक है ना। अब इस लाइन के ये यहाँ पर सारे लोग पुअर है, ये यहाँ पर, और ये सारे लोग यहाँ पे अमीर है। तो ये बेचारे जो ट्रांजिएंट वाले ना, थोड़ा पैसा आ जाता तो बस लाइन के पास पहुँच जाते हैं यहाँ पे। कहाँ से? यहाँ से, इस एरिया से यहाँ पहुँच गए, ठीक है ना। तो थोड़ा पैसा आ गया था, और कभी थोड़ा और पैसा आ गया तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, बस ये देखो लाइन के जरा सा ऊपर पहुँच गए, फिर वापस से नीचे आ जाएंगे। इनका यही चलता रहता है बेचारों का, इससे ऊपर नहीं जा पाते, ठीक है। तो ट्रांजिएंट पीपल हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी लाइन, एग्जाम्पल स्मॉल फार्मर्स एंड सीजनल वर्कर्स, ओके। स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स भी कहते हैं उनको। स्मॉल फार्मर्स, उनको मान लीजिए पिछले 5 साल से फसल बर्बाद हो रही, तो गरीबों की श्रेणी में रहेंगे। बाय लक एक साल बहुत अच्छी फसल हो गई, डजंट इट, सरकार ने भी मदद कर दी, सरकार चेंज हो गई तो सरकार ने उनका फेवर कर दिया, डजंट इट, कुछ नए नियम लिया है सरकार, तो उनको प्रॉस्पेरिटी आ गई, ठीक है ना। अब 3 साल बाद फिर वापस गरीब हो गए, तो जब वो प्रॉस्पर हुए तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ गए, अमीर हो गए, फिर वापस नीचे चले गए। तो दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिएंट पुअर, ठीक है ना। ट्रांजिएंट पुअर मतलब दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना। अब अगर एक तरह से हम देखें, कुछ अगर कैटेगराइज करें, ठीक है ना, तो देखिए पुअर लोगों लाइन को एक लाइन ऐसे खींच दिया आपने, इस लाइन की एक तरफ सारे पुअर आ गए और दूसरी तरफ कौन आ गए? रिच आ गए। अब पुअर में भी जैसे ये देखो एब्सोल्युटली पुअर, जिनको कहते हैं क्रॉनिक पुअर, को क्रॉनिक पुअर भी कह सकते हो। देन वेरी पुअर, बहुत गरीब, फिर गरीब, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे देखो लाइन के नीचे नॉट सो पुअर, मतलब वो बिल्कुल ये लाइन से लगे हुए हैं, तो ना तो अमीरों की श्रेणी में आते हैं ना गरीबों के, बस ये यहाँ पे तो बस ठीक ठाक चल रहा है उनका काम, तो नॉट सो पुअर, ठीक है। मिडिल क्लास, फिर अपर मिडिल क्लास, फिर द रिच, द वेरी रिच, देख लो, ठीक है ना। नॉट सो पुअर, मिड, ये बिल्कुल लाइन के पास रहेंगे। अपर मिडिल क्लास, द रिच, द वेरी रिच, मिलियनेयर और बिलियनर, सोच लीजिए आप, इजंट इट। तो अगर आपको बिलियनर तक पहुंचना है, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। गॉट इट, हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टू रीच हियर मे बी, ठीक है। शॉर्टकट भी होता है, लेकिन वो शॉर्टकट नुकसान करता है, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो पॉवर्टी लाइन डिटर्मिन कैसे करते हैं, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। Poverty line, determination of poverty line, how the poverty line is determined. Monthly per capita expenditure used, that is MPC. MPC is an acronym for monthly per capita एक्सपेंडिचर। मंथली आप कितना खर्च कर रहे हो। अब खर्च करने का ये मतलब नहीं कि मान लीजिए आपने आपको कुछ कहीं से पैसा आ गया आपके पास, है ना, आप गरीब हो, आपके पास पैसा आ गया, अब 3,000 रुपये आ गए एक महीने के, अब वो 3,000 रुपये आपने दूसरी चीज़ों में मतलब ये भी होता है, हाँ, ध्यान रखना कि भाई कहीं से पैसा आ गया बंदे के पास, उसके घर में एक उसकी वाइफ है, बच्चा है, 2 बच्चे हैं, वाइफ है, अब 3,000 रुपये हैं उनके पास, तो 3,000 रुपये में से 2,500 की तो दारू पी गया बंदा महीने भर में, 500 रुपये दिया वाइफ को, 500 रुपये में बेचारी ने कहीं से आटा लाती, किसी से मांग के लिए आती है, 100। तो अब अगर उसको आप कहो कि भाई इस घर से 3,000 रुपये का एक्सपेंडिचर होता है, चलिए मान लीजिए कि वो बंदा काम करता है कहीं पे, मान लीजिए चौकीदार है वो कहीं पे, है ना, और उसको महीने के 3,000 रुपये मिलता है, वो 3,000 घर लाता है और 3,000 में से 500 रुपये महीने के वाइफ को देता है, बोला अब इसको तो पूरा महीने भर चला, और 2,500 की दारू पी जाता, शराब पी जाता, है ना। अब वो सर मान लीजिए अगर कोई सेंसस वाले आएंगे, बोलेंगे भाई हाँ कितने का खर्चा आता है, बोला सर हम लोग 3,000 रुपये खर्चा करते हैं महीने के। अच्छा, बोला तनख्वाह कितनी मिलती है, बोला सर 3,000 मिलती है। तो अगर वो मान लीजिए
ये नहीं देखेंगे किस चीज़ पे खर्चा हो रहा है, तो ये बहुत फिर गए काम। वो ये नहीं बता रहा है कि मैंने दारू पे खर्च करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, वो ये बता रहा है कि बस मैं खर्चा कर देता हूँ। अगर मान लीजिए वो लोग सोचे कि हाँ यार 3,000 रुपये ला रहा है, तो हो सकता है 1,000 रुपये ये लोग खाने पे खर्च करते होंगे, तो ये पूरा गलत आंकड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी देखना आपको कमा कितना भी रहे हो, खर्च कहाँ पे हो रहा है। क्या खर्च वहाँ पे हो रहा है इतनी कैलोरीज का फूड खरीदने में 2400 की या 2100 की, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। So determine on the basis of recommended nutritional requirement of minimum calories intake of 2400 per person per day in rural area and 2100 calories per person per day in urban। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे आप डिसाइड पावर्टी लाइन होती है। 2400 पर पर्सन पर डे इन रूरल एरिया आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि आपको मेहनत का काम है, और 2100 कैलोरीज आपको खाना है कहाँ पर, अर्बन एरियाज में। ठीक है। अब यहाँ पर भी एक लोच आ गया, क्या कि आपने 2400 फिक्स कर दी रूरल एरिया के मेहनत का काम है, लेकिन वहाँ पर भी कैटेगरी, एक बंदा जो ज़मींदार है उसने आदमी रख रखे हैं, टेनेंट्स रख रखे हैं ज़मीन पे, वो काम करते हुए आराम से लेटा रहता है, तो उसको 2400 की ज़रूरत थोड़ी। ठीक है ना। बट एक आंकड़ा है। ठीक है। सो बेस्ड ऑन कैलोरीज। ठीक है ना। अब 2100 की कैलोरीज चाहिए और 2400 की कैलोरीज चाहिए, इसके लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये भी सेकंड थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ड ऑन कैलोरीज कंजम्पशन इन 2011-12। ओके, तो ये पुराना आंकड़ा नहीं है, नया ही है। द पॉवर्टी लाइन वॉज डिफाइंड फॉर रूरल एरियाज एज कंजम्पशन वर्थ ₹816 पर पर्सन अ मंथ। 816 रुपये आप खर्च कर रहे हो कितनी कैलोरीज के लिए, 2400 के लिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सस्ता मिलता है खाना। कहाँ पे, गांव में आपने मान के चला। ठीक है। एंड अर्बन एरियाज में आपको कितना खर्च करना पड़ेगा, 1000 रुपीज फॉर हाउ मेनी कैलोरीज, 2100, क्योंकि थोड़ी महंगाई भी है, और तो पैसा ज़्यादा लग रहा है और कैलोरीज कम लग रही। कहाँ पे, अर्बन एरियाज में। रूरल एरियाज में पैसा कम लग रहा है लेकिन कैलोरीज ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। इतना आप कर पा रहे हो तो आप अमीर हो, इतना नहीं कर पा रहे हो तो आप कैसे हो, यू आर पुअर पर्सन। ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड सम प्रोसीजरल डिटेल्स रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। अब ये मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपके उसके जैसा जो आपने 11th में पढ़ा था, स्टैटिस्टिक्स, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इंटरवल। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो एक मान लीजिए एक गाँव में आप गए, वहाँ पे आपको, गाँव बहुत छोटा सा है, 500 लोगों का सैंपल निकालना है आपको कि उनके वहाँ पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं या नीचे हैं, या फिर आपको ये पता करना है कि वहाँ पे पूरी कैलोरीज का खाना मिल पा रहा है कि नहीं लोगों को। तो क्या करोगे आप, यू विल गो देयर, ओनली प्राइवेट कंजम्पशन पर पर्सन इज कंसिडर्ड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ कंजम्पशन कट ऑफ। कंजम्पशन कट ऑफ कितना है वो आपने निर्धारित कर दिया है, कितना, 816 और 1000 रुपये। ठीक है ना। और ठीक है ना। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज इज वर्कड। अब एक एक घर में जा रहे हो, उनके फैमिली मेंबर से पूछा, कितने फैमिली मेंबर, 5। ठीक है ना। और फिर आप बोलो कि सब अच्छी तरह खाना खा रहे हैं, तो बोलो आप 5 से पूछ लिया कि आप कितना खर्चा करते हो खाने पे, वो बोल देंगे भाई हम लोग तो 5000 कर रहे हैं। तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो आपको मिल गया 1000 रुपये, और 1000 रुपये में आपको लग गया कि हाँ ये इतनी कैलोरीज आ सकती हैं। इस तरह से वर्कआउट होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर्म्ड विद डिफरेंट क्लास इंटरवल, एंड यू नो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स रिपीटेड। ओके, तो कितने, वो आपने 500 लोगों का कैसे बना रहे हो, घर घर जा रहे हो आप, फिर आपको पूरा पूरा एक करना पड़ता है यहाँ पे, है ना। कितने लोग हैं जो 2400 से ऊपर आ रहे हैं, कितने लोग हैं जो 2400 से नीचे आ रहे हैं, कैलोरीज की बात हो रही है। ठीक है ना। तो जितने कितने 2400 से ऊपर आ रहे हैं, कितने लोग 2400 से नीचे जा रहे हैं, उसका पूरा आप डाटा तैयार करोगे। जो जो रिपीट हो रहे हैं कि हाँ ये 24 24 24 24 कितने जितने बार रिपीट हो रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप लिख दोगे। ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर्म्ड विद डिफरेंट क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स किस चीज़ का लोगो, कैलोरीज का। मतलब आप पूरा ऐसा बना लोगे जैसे क्लास इंटरवल, पहला कॉलम बनेगा क्लास इंटरवल। अब कहाँ से स्टार्ट करोगे, 500 to 1000, ये क्या हो जाएगी कैलोरी, 500 to 1000, 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500। अब उसके सामने फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 500 लोगों का गांव है, तो 0 to 500 तो मेरे को नहीं लगता कोई होगा, 500 to 1000। अब आप देख लो कितने लोग 500 to 1000 खाना ढंग से नहीं खा पा रहे हैं। आपको लगेगा 500 लोगों में से 25 ऐसे हैं बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी के सामने 25 लिख दोगे ऐसे। ठीक है ना। इस तरह से पूरा बन जाएगा आपका। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर्म्ड विद डिफरेंट क्लास इंटरवल। हायर क्लास शोज हायर लेवल ऑफ कैलोरीज कंजम्पशन। ठीक है।
frequencies are recorded against each class interval. इसको आप बस रट लेना एक पूरा. Each frequency count the number of heads belonging to a particular consumption class. Each frequency count the number of, मतलब frequency क्या रहेगी, मतलब 25 अगर लिखा है तो 25 लोग हैं जो 500 से 1000 के क्लास इंटरवल में आ रहे हैं, मतलब वो 500 से 1000 की कैलोरीज खा पा रहे हैं, मतलब वो आप किस ब्रैकेट में चले जाएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले. ठीक है, ये नंबर ऑफ हेड्स का मतलब यहाँ नंबर ऑफ पर्सन. फाइनली द हेड काउंट रेशियो इज वर्कड आउट फॉर द रूरल एंड अर्बन एरिया. ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है हेड काउंट रेशियो. हजन रेट आज इतना रखते हैं हम, नहीं तो आप बोर हो जाओगे. कल और परसों में ये पूरा चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगा आपको. हजन रेट. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू. सो थैंक यू.